A very good morning to all of you. And as we have finished with our two of the main chapters, now we are on third. अब चैप्टर फ्लैश कर रहा है चैप्टर 4 किए हमने दो हैं, तो चैप्टर 4 इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बीच में से जो हम छोड़ेंगे उसके हिसाब से सीक्वेंस बुक के हिसाब से यहाँ पर बुक के हिसाब से लिखा. I've noted down sequence here as per book, but I'm skipping few chapters there which are not important, and we'll be including class plus 2 chapters instead of those one. I hope I'm clear to you all. Chalo, let's start with lesson 4, that is art of Ajanta, circa 2nd century BC BCE to 480 to 650 AD. And what do we are going to study today? We will be doing the introduction part, discovery, location and period, numbers of caves, type of caves, technique of Ajanta frescoes and murals. So, let's get introduced to this Ajanta caves. Introduction. Ajanta is a great treasure. Its caves are fine example of rock cut architecture. They contain some refined sculptures and, more importantly, paintings of matchless beauty. Intact, the bright history of Indian paintings start from the wall paintings frescoes of Ajanta. The scholars believe nowhere in the world such beautiful paintings were done during that period. That is why it is known as the golden period of Indian art. The followers of Lord Buddha constructed several stupas, chaityas and viharas throughout India. The stories of past lives of Buddha, known as Jataka stories, were painted in Bhaja, Karle, Kanheri and Ajanta. देखिए बेटे, अजंता का जो नाम है वर्ल्ड ओवर में फेमस है बिकॉज ऑफ द केव्स विच वर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक. उस रॉक को काव करके उसमें केव्स जो बनाई गई हैं और उसके अंदर जो पेंटिंग की गई है वॉल पेंटिंग, दैट टू इन प्रिमिटिव टाइम्स इज़ रिमार्केबल. There was no source of light or something like that. Then two artists have done marvelous job after doing so many efforts. They have put up so beautiful paintings over the ceilings and over the walls of Ajanta caves. And it is said that these caves were actually constructed for a purpose. These were the chaityas and viharas for the Buddha followers, Buddha saints, Buddha monks, as they were traveling from place to place to serve the sermon by the Buddha. तो वो जगह जगह जाते थे, तो उनको रहने के लिए जब जगह चाहिए होती थी तो ये कहा जाता है कि इसलिए इन केव्स का कंस्ट्रक्शन हुआ. और ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पर इनके पैरेलल वर्ल्ड ओवर में कोई आर्ट नहीं इतने लेवल का हाई था. And that's why it is considered as golden period of Indian art. और ये सिर्फ बुद्धा से रिलेटेड नहीं है, उनके सारे प्रीवियस जन्मों से भी, पिछले जन्मों की भी स्टोरीज इसमें हमें देखने को मिलती हैं. विहारा और चैत्या केव्स में फ़र्क होता था. जो चैत्याज होते थे वो पूजा करने वाली केव्स होती थी. विहारा केव्स वो होती थी जहाँ पर भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, मॉन्क्स कुड स्टे. Now, when it was discovered? In CE 1817, some tiger hunting British soldiers first saw this collection of caves lying deserted in a horseshoe-shaped narrow valley close to Aurangabad. On this fateful day, the art of Ajanta was exposed to the fascinated world. बेटे ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी. इनको डिस्कवर करने के लिए कोई स्पेशल गया नहीं था. एक्चुअली कुछ एक ब्रिटिश सोल्जर हंटिंग के लिए निकले थे जो टाइगर को मारना चाह रहे थे, और ये उन्होंने देखा कि एक बहुत अजीब सा एक कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पर, और वो हॉर्स शू शेप, अगर अपने हॉर्स शू देखा है तो जैसे वो
बेंट हुआ होता है, सेम उसी की शेप में ये केव्स उनको दिखाई दी। जब वो अंदर गए तो वो स्टंट रह गए देख कर कि कितना फैंटास्टिक वर्क इनसाइड द केव्स दे कुड सी। So these caves were discovered accidentally by the British soldiers. Now location and period. This holy pilgrimage of Indian painting, set like a huge amphitheater, is situated in Aurangabad district of Maharashtra state. There is a hillock about 300 feet in the crescent moon formation or a horseshoe formation with the steam flowing nearby. These are the actually temples of art where we see expression of love, patience, worship, sacrifice, sympathy, peace in the form of architecture, sculpture and painting. Ajanta is the only surviving example of painting in 2nd century BC. Now, what is BCE? BCE stands for before Common Era and is used in the same way as BC and 6th century AD. The exact time periods are not available due to the lack of dated inscription. क्योंकि बटे उन पर तारीखों का मेंशन नहीं है तो हमें उनकी एग्जैक्ट तारीखें तो नहीं पता, बट यस दीज आर द होली पिलग्रिमेजेस। ये एक तरह से कला के लिए धार्मिक स्थान है ये जगह। और इसके पास जो एक स्टीम एक झरना बहता है, बड़ा ही नेचुरल सा एटमॉस्फेयर है, आसपास जंगल है इस जगह के। दैट इज़ वाई फॉर ईयर्स, फॉर रादर आई मस्ट से सेंचुरीज, दिस प्लेस वाज हिडन बिकॉज ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। और यहाँ पर जो उसका शेप है गुफा का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उल्टा हॉर्स शू अगर आप करके देखें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट शेप मैच कर जाएगी इसकी। व्हेन वी विल मीट आई विल शो यू द एक्चुअल पिक्चर। तो यहाँ इसको हम क्रेसेंट मून से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट ये जो हम देख रहे हैं अजंता का वर्क, ये एक तरह से आर्ट का टेम्पल माना जाता है, और जहाँ पर हमें तरह तरह के एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें लव है, पेशेंस है, वर्शिप है, सेक्रीफाइस है, सिंपथी है, पीस है। और ये आर्किटेक्चर वे से भी एक बहुत अच्छी जगह है। इसके अंदर स्कल्पचर्स भी बड़े खूबसूरत कार्व्ड हैं, सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है। तो अपने आप में अजंता एक मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है। नाउ फर्स्ट फेज इज हीनयान, second first century BC. The earliest caves, kindly note the numbers, earliest caves number 8, 9, 10, 13 and 15 were painted, sculpted during the rule of Satavahanas. तो जो पहली कंस्ट्रक्शन है, ऐसा समझा जाता है कि ये डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम में स्प्रेड हुआ कंस्ट्रक्शन है। तो पहला इसका जो फेज था वो 2nd सेंचुरी BCE में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और अर्ली केव्स के जो नंबर वो बता रहे बेटे, ये टोटल 29 to 31 हैं केव्स। तो अभी आपको जो नंबर इसीलिए बताए जा रहे हैं वो कि 8, 9, 10 और 13 तो पहले बनी थी, और इसके बाद धीरे धीरे सतवाहनास के टाइम पे बनी है ये, और धीरे धीरे बाकी के और केव्स को बाद में डिज़ाइन किया गया। सेकेंड फेज महायाना पीरियड। बेटे जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में, दो ब्रांचेस हैं इसकी, हीनयान या महायान। हीनयान में बुद्धा के जो स्कल्पचर्स थे बनाने, पेंटिंग्स बनानी बैन थी, और महायान के टाइम पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो उससे पहले, महायान से पहले हीनयान में बुद्धा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता था, लाइक छत्र, लाइक चरण पादुकास और अदर चीज़ें, या बोधि ट्री। तो जो महायान था इसमें उन्होंने फ्रीडम दी आर्टिस्ट को कि वो आर्ट को अच्छे ढंग से डिपिक्ट करें और बुद्धा की फॉर्म को बना सकें। तो इसमें उन्होंने बुद्धा की फॉर्म्स बनाई हैं, एंड बुद्धा के जीवन से रिलेटेड सारी स्टोरीज इसमें मेंशन्ड है। नाउ द सेकेंड फेज was greater artistic activity at Ajanta, and remaining caves were painted, sculpted during the rule of
Vaktaka dynasty from the 4th to 6th century AD. The rulers, the Satavahanas, the Vaktakas, and Chalukyas were themselves Hindu but allowed Buddhism to prosper in their territory. देखिए बेटे, ये हमें एक तरह से दे लेट अस नो दैट हाउ द रूलर्स वर सो जेनरस, दे लेट द बौद्ध धर्म प्रॉस्पर इन देयर टेरिटरी डिस्पाइट दे वर हिंदूज. ठीक है, ये सारे जो सतवाहनास है, वाक्टकास हैं या चौलक्यास हैं, सारे हिंदू रूलर्स हुए हैं, बट इन्होंने बौद्धिज्म को स्प्रेड होने दिया और रादर उनको सपोर्ट किया, उस टाइम के आर्ट में भी उनको इंक्लूड किया. The rich business community organized the guilds and provided the required funds. The entire Ajanta chapter is a tribute to the religious tolerance of the Hindu rulers. The art mastered during Gupta period bloomed yet again with the fullest charm. अब देखिए, ये एक कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि हिंदुस्तान में इन जो हिंदू रूलर्स थे, उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई. दे हैड शोन देयर जेनरस साइड, देयर रिलीजियस टॉलरेंस वाज रिमार्केबल. तो उन्होंने उस टाइम पर भी आर्ट को रोकने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि वो बौद्धिज्म को प्रमोट होने से रोकते. अब अजंता इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 29 चैत्यास एंड विहारा केव्स. जैसे मैंने आपको बताया था से 29 से 31 ये केव्स हैं, और केव 1 इज अनफिनिश्ड केव दैट वर चिजल्ड इनटू +1 केव अनफिनिश्ड. इसमें बेटे एक केव अनफिनिश्ड भी है दैट वर चिजल्ड टू अ लाइव रॉक एंड आर होस्ट टू मैनी ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. केव नंबर 1 इज बिगेस्ट वन. ये 21 फीट लॉन्ग है, is the biggest cave and which is home to the figure painting of पद्मपानी. बेटे, इसमें अजंता में सबसे फेमस पेंटिंग जो है वो है बोधिसत्व पद्मपानी, और वो भी केव नंबर 1 में ही सिचुएटेड है. केव नंबर 29 is the best stupa cave. केव नंबर 17 वो हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स. अब जो सबसे बड़ी केव है वो केव नंबर 1 है. 29 नंबर केव जो है वो सबसे बेस्ट स्तूपा. स्तूपा आप फिर से समझिए, स्तूपा वो थे जहाँ पर बुद्धिस्ट रिमेन्स रखे जाते थे, या आप उनको चैत्यास बुला सकते हो, जो ये पूजा स्थल माने जाते थे. ठीक है. केव नंबर 17 हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स. 17 नंबर जो केव है उसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं. केव नंबर 1 सबसे बड़ी है और उसमें सबसे फेमस पेंटिंग है बोधिसत्व पद्मपानी. Now types of caves. These are 2 types of caves, chaityas or stupas. These were the places of worship and religious discussions. Cave number 9, 10, 19, 26 and 29 are the chaitya caves. Vihara caves or living caves. These were the places, living places for the Buddha bhikshuks. Cave number 1 to 8, 11 to 18 and then 20 to 28 and then 30th are the Vihara caves. बेटे, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, there is huge difference between the two. Chaitya or stupa caves were the worship caves. That means those were kind of temples. And Vihara caves or the living caves, as from name only it is clear, that was meant for the living places for the Buddha bhikshuks. And now we will do the technique of Ajanta frescoes and murals. Ajanta frescoes were done in tempera style. The surface of the place where painting was to be done was made rough using some tools. A plaster containing stone powder, cow dung and rice straw husk was applied so that a thickness of half to 2 inches. After applying plaster, the surface was beaten with flat bamboo sticks. After 3 or 4 layers of same plaster beaten every time with bamboo sticks, the surface was covered by a thin coating of lime paste which was treated as a painting surface. बेटे, अगर आप समझें इसको तो देखिए कितना यूनिक स्टाइल था पेंटिंग करने का. आपको पता है कि जब आपने देखा होगा जब आपके घर में कहीं टाइल्स लगनी हो वॉल पे तो क्या किया जाता है, पहले सरफेस को रफ किया जाता है ताकि जो टाइल है उसकी पकड़ बन सके. सेम वॉज हियर.
they used different kind of technique. They wanted to do temper style painting. So what they do कि उन्होंने वो सरफेस को, जो गुफा की सरफेस थी, पहले चिजल आउट किया उसको, थोड़ा खुरशा जिससे वो रफ हो जाए सरफेस. फिर उन्होंने उसके लिए एक प्लास्टर रेडी किया जिसमें स्टोन पाउडर, पत्थर का चूरा पाउडर, और काव डंग जो गोबर होता है, एंड राइस हस्क भी, जो राइस से निकलता है उसका बुरादा, तूड़ी, वो डाली और इसको वॉल के ऊपर डाला. कम से कम 2 इंचेस और लेयर हो उसका. तो आफ्टर अप्लाइंग द प्लास्टर द सरफेस वाज बीटन विद फ्लैट बैम्बू स्टिक्स. तो बेटे उसको स्मूथ करने के लिए, उसको प्लेन प्लास्टर जैसा टेक्सचर देने के लिए, तो उसको जोर जोर से फ्लैट साइड से बैम्बू की मारा जाता था ताकि वो एक तरह से प्लेन और स्मूथ हो जाए. जब ये 3 या 4 लेयर्स सेम प्लास्टर्स की हमेशा ही बार बार बैम्बू के स्टिक्स के साथ मारने के बाद कवर हो जाती थी, तो उसके ऊपर एक बहुत ही थिन कोटिंग लाइम पेस्ट, नींबू के उसका पेस्ट बनाकर उससे की जाती थी ताकि पेंटिंग के लिए सरफेस रेडी हो सके. इससे क्या फ़र्क पड़ता था, ये जो लाइम पेस्ट होती थी वो कलर्स को चिकना चमकदार बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करती थी. Then line drawings required for the painting were drawn with red color ruddle on the surface where painting was to be completed while the surface was wet. After the first outlining of the composition, the painter would then define the subjects with an undercoat of grey. After covering the whole surface as a finished painting with natural water soluble colors, the painter would begin again, give a last polishing with a smooth stone to give a shine, and in the end finishing lines were made by black or brown color. अब देखिए बेटे, जब सरफेस रेडी हो जाती थी तो ड्राइंग की जाती थी. ड्राइंग करने के लिए रेड कलर या रडल का इस्तेमाल होता था. जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी और सरफेस वेट ही होती थी तो उसकी आउटलाइन भी कंपोजिशन की दे दी जाती थी ताकि जो उसकी कंटूर्स हैं पेंटिंग की वो क्लियर हो जाए. थिक एंड थिन लाइंस के साथ ही सारे एक्सप्रेशन एंड इम्प्रेशन क्लियर किए जाते थे. आफ्टर कोटिंग, आफ्टर कवरिंग द होल सरफेस with natural water soluble colors, painter would again give a last polishing with the smooth stone. और उसको पॉलिशिंग करने के लिए वो स्मूथ स्टोन के साथ उसकी पॉलिशिंग करते थे उसको शाइन देने के लिए. एंड फिनिशिंग लाइन या ब्लैक से या ब्राउन कलर से की जाती थी. कलर्स ऑफ अजंता. द पिगमेंट्स ऑफ कलर came from local volcanic rock shades of green and ochre resulting from withering of the basalt. The natural white color was prepared from limestone or chalk, blue color from Nile indigo and indigo plant. Later on, lapis lazuli was imported and ground for the blue pigment. Other color were yellow, vermilion, traverade, and red from red ruddle, a type of red stone powder. Some believe that yellow color might have been prepared for arsenic, and the rest all colors used in Ajanta painting were the mixture of red, blue, yellow, and white. Lamp black was the only organic color. देखिए बेटे, जो कलर्स थे वो जितने नेचुरल अवेलेबल होते थे वो उन्हीं से इस्तेमाल करते थे. और कुछ ही जगह पर तो उन्होंने एक्सपेंसिव लेपिस लाज़ुली स्टोन उसको पाउडर बना के ब्लू कलर की जगह पर इस्तेमाल करते थे. और जो लैम्प कलर है, बाकी के रंग तो उसने बता दिए कि कौन कौन से कहाँ से उसने लिए हैं. जो लैम्प कलर ब्लैक लिखा है वो ऑर्गेनिक कलर था. वो क्या करते थे उसके लिए, जैसे हम कोई जोत जलाते हैं या दिया जलाते हैं, अगर उसको बेटे हम सिर्फ उसकी एयर क्रॉस होने जो जितनी जगह छोड़ें और बाकी को कवर कर दें तो उसका जो धुआं है वो ब्लैक फॉर्मेशन, एक काला रंग उस जगह पे लगाना शुरू कर देता है. उसको खुरच के निकाला जाता था और उसको एज ए ब्लैक कलर यूज़ किया जाता था. और ये सारे जो कलर्स हैं नेचर में एज इट इज़ अवेलेबल हैं. इनको पीस कर डाइल्यूट करके मिक्स करके पानी के साथ या फिर कभी कभी किसी
लिक्विड ऑयल के साथ मिक्स करके अप्लाई किया जाता था. The colors were bonded with animal glue and vegetable gums. Figures were outlined with thin brush strokes, first in dull red. Red local colors were applied with slight shading, usually with the highlights in the middle of the form and the darker tones on the outside. This gave the effect of a shallow relief, the occasionally seen in the case of jewelry. बेटे उसको एक रिलीफ जैसी लुक देने के लिए वो क्या करते थे, सेंटर में शाइन लाते थे और साइड्स पर आके एंड में आके डार्कनेस देते थे. और इसको बनाने के लिए जैसे मैंने बोला वेजिटेबल ऑयल्स या फिर एनिमल ग्लू, जानवरों की जो चर्बी है उसको डाइल्यूट करके उसको मिक्स करके कलर्स में अप्लाई करते थे. और जो ब्रश के स्ट्रोक्स थे कहीं थिन कहीं थिक, वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होते थे कि कहाँ वो थिन होनी चाहिए कहाँ वो थिक होनी चाहिए. और इसी से वो हाइलाइट्स देते हुए अपने जो पेंटिंग्स थी उनको एनहेंस करते थे. डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्कोज एंड म्यूरल्स. Mural is an artwork painted or applied directly on a wall or a ceiling. It becomes one with any architecture space, no matter how big it is. Fresco, on the other hand, is one of the type of mural in which painting is done on wall treated with lime plaster, either dry or wet. The color thus soaks into surface and becomes one with it. Therefore, a fresco is a mural, but a mural may or may not be a fresco. देखिए जो म्यूरल होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये चाहे हम ज़मीन पे रख के कहीं और किसी और सरफेस पे करें और लेटर ऑन हम उसको वॉल पे या सीलिंग पे फिक्स कर दें, तो ये क्या होता है कि ये एक पार्ट बन जाता है उस आर्किटेक्चरल स्पेस का. ये मैटर नहीं करता ये बिग होगा या स्मॉल होगा, तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फ्रेस्को क्या होता है, वो एक टाइप का म्यूरल है. म्यूरल जो हम दीवार पे करते हैं, और ये एक पेंटिंग है वॉल्स जिसके लिए स्पेशल उसको ट्राई किया जाता है, वॉल को रेडी किया जाता है. थिक पेस्ट लाइम का लगा कर ड्राई या वेट में ये टेक्निक फॉलो अप की जाती है. कई बार तो क्या कहते हैं वेट एंड वेट टेक्निक फॉलो करते हैं ताकि वो जब सूखे तो उसमें शीन एज इट इज़ रहे. द कलर द सोक्स इन टू द सर्फेस एंड बिकम वन विद इट. अगर गीली सरफेस पे वो रंग लगाते हैं उसका मकसद ये होता है कि अगर वो गीली सरफेस पे लगाएं तो जब सरफेस सूखेगी तो कलर भी उस सरफेस के साथ ही पक्का हो जाएगा. फ्रेस्को इज़ अ म्यूरल. फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग जैसा ही है, बट म्यूरल मे नॉट बी अ फ्रेस्को. ठीक है. सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स. This is very important. We will be now doing subject matter of Ajanta painting. तो अजंता पेंटिंग में सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट बेटे उसके ऊपर जो काम हुआ अजंता पेंटिंग के ऊपर, उसके भी अपने ही एक सेक्शंस रहे हैं. अब सब्जेक्ट मैटर में आता है Ajanta caves are the picture books of Buddha's life and teachings. ठीक है. Buddha's intelligence, noble character, selfless service and compassion are illustrated on these timeless walls with the help of Jatka tales. The previous births of Buddha, the artists were also aware of their times. We find different aspects of life painted in Ajanta caves: lonely life of village, luxury life of courts, beggar, fisherman, fighting soldiers, hunters, bullfight, birds and animals, etc. are found in Ajanta paintings. The whole religious and philosophical life has been depicted in the background of these figures. देखिए बेटे बेसिकली थीम तो उसका बुद्ध रहे हैं. बुद्ध का सारा करेक्टर, उनकी पिछले जन्मों की स्टोरीज, उनके इस जन्म की स्टोरी और उनके जो किए हुए डिफरेंट धार्मिक कार्य सब के ऊपर बेस्ड है अजंता पेंटिंग्स. और
Artists were also aware of the times, the situation, the social situation, the political situation. So here a number of scenes are depicted where we can see the lonely life of villages, the luxury life of towns, beggars, fishermen, right from beggar to the king. Every kind of topic you will get over here in the background of these eminent figures. According to the scholars, the painting of Ajanta can be divided into three parts as regard to the सब्जेक्ट मैटर. अगर हमने सब्जेक्ट मैटर अजंता पेंटिंग्स का स्टडी करना हो तो उसको तीन हिस्सों में, इट इज़ डिवाइडेड, तीन हिस्सों में इसको बांटा जाता है. दे आर ऑर्नामेंटल, इमोशनल और एक्सप्रेसिव. नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव. The first category includes animals, birds, flowers, creepers, giants, divinities, snakes, gandharvas, apsaras, and yaksha. Buddha in different poses, his birth, death, and spiritual events, Bodhisattva king and queen, come under the second category. The third category consists of jatkas and avdhanas, the stories and the events of Buddha's life which are maximum in number. देखिए पहली कैटेगरी जो उन्होंने हमें बोली थी वो ऑर्नामेंटल थी, जिसमें क्या आता है, बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, क्रीपर्स आते हैं, जायंट्स आते हैं, डिविनिटीज आते हैं, स्नेक्स आते हैं, गंधर्वास आते हैं. ये क्या कैटेगरी है, ऑर्नामेंटल, जिसका पर्पस है कि उस चीज़ को खूबसूरत बनाना है. एंड नंबर 2 पर आती है इमोशनल या फिर एक्सप्रेसिव. Apsaras, Garuda, Yaksha, Buddha in different poses, his birth, death and spiritual events, Bodhisattva, king and queen come under the second category. तो सेकेंड कैटेगरी क्या थी, इमोशनल और एक्सप्रेसिव. और थर्ड कैटेगरी क्या है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें स्टोरीज आ जाएंगी, जातकास और अवदनास. जातकास मतलब बुद्ध के पिछले जन्म से रिलेटेड हुई स्टोरीज और इवेंट ऑफ लाइफ विच आर of Buddha's life which are maximum in number. In next lecture we will be doing the main specialties or the characteristics of Ajanta paintings. For the time being this is for today, and I hope you are able to understand. I'll be hoping that you will be able to meet us soon via either video calling or we will be having it live session in school as well. I hope everything goes well and this coronavirus threat also slows down so that we can meet you guys. And if there is any doubt you may contact me. Thank you so much. Have a good day.